底是那一个黄昏，还是那一个清晨？清风送你。Assalamualaikum guys, welcome to the podcast. This is another episode of Pak China Window. Today we are having a very special guest. He is the son of Haji Alamzeeb Khan Shahid, and he was the Minister of Provincial Assembly, KPK, Khyber Pakhtunkhwa. Muhammad Zeeb Khan, he got educated in Peshawar. He got his LLB from Karachi, and he's having with us now. Assalamualaikum Muhammad Zeeb bhai. Walaikum salam. Muhammad Zeeb bhai, welcome to the show. Muhammad Zeeb bhai, we will have a short questions from you today. It's all about Pakistani students in China. First of all, I'd like to ask you, what do you know about China? China and Pakistan, these two are very close countries because of a very huge boundary. اور ہمارے پاکستان اور چائنا کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. جیسے سب سے پہلے میں آپ کو مینشن کروں گا، ہمارا ایک بہت بڑا ہائی وے تھا. یہ ابھی ریسنٹلی جو سی پیک بن رہا ہے، اس سے پہلے اسے کہتے ہیں کراکورم ہائی وے. 1300 کلومیٹرز کا وہ روڈ 1960 یا 1970s میں جو ہے اس کو پاکستان اینڈ چائنیز کے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے مل کے بنانا شروع کیا تھا. ایک کوریڈور دیا جس کو پاکستان سے چائنا کے ساتھ ایک روڈ کا ایک افتتاح ہوا تھا، اور اس چیز کو کافی ٹائم اس نے لیا کیونکہ اس میں کافی جانیں بھی گئی. بہت سے ہمارے آرمی کے، بہت سے ہمارے پاکستان کے جو مزدور اور جو آرمی کے سائڈ سے جو انجینئرز تھے اور جو چائنیز کے سائڈ پہ مزدور تھے اور جو ان کے انجینئرز تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی. تو چائنا اور پاکستان کا ایک بہت گہرا رشتہ اس روڈ سے شروع ہوا تھا. اور اس کے بعد ابھی جو ہماری پیدائش جو ہے وہ ابھی ایک طرح سے آپ کہہ دیں کہ ریسنٹلی، مطلب یہ 2022 ابھی سٹارٹ ہوا ہے. تو ابھی سے جو ہم اگر دیکھیں پاکستان اور چائنا کا جو زیادہ تر لوگوں کا جو سوچ ہے، ایک عام بندے کی سوچ ہے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان اینڈ چائنا بوتھ آر ویری کلوز فرینڈس بیکاز آف اے باؤنڈری. اور ایک ادر چیز جو بڑی ہے وہ ہے ایجوکیشن. ہماری جو ایجوکیشن ہے اس ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمارے ملک میں کافی ڈاکٹرز، کافی انجینئرز، کافی جو بزنس کے لحاظ سے ہیں، جو لائرز ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اسٹڈیز جا کے چائنا سے کی. ایون یہ کہ پاکستان میں چائنیز کا بھی بہت زیادہ انفلو ہے. آپ اگر اسلام آباد کی طرف جائیں تو اسلام آباد میں بہت چائنیز یہاں پہ رہتے بھی ہیں، اور ایک اس طرح سے رہتے ہیں کہ جس طرح ایک عام پاکستانی بندہ رہتا ہو. سیم ایز اٹ از اگر آپ چائنا کی بات کریں تو چائنا کے بہت سے جو شمالی جنوبی جتنے علاقے ہیں ان سب میں پاکستانی جو ہیں اسٹوڈنٹس کے طور پہ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جابس بھی کی. بہت سارے بزنس کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، تجارت کو فروغ دینے کے لیے. تو چائنا کا میرے مائنڈ میں جو ایک طرح سے آپ اگر مجھ سے ذاتی اپنا پوچھنا چاہتے ہیں تو چائنا اور پاکستان کا ایک فرینڈشپ کے علاوہ ایسا ایک تعلق ہے جس تعلق کو ہم لوگ آگے فروغ دیں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں چائنا کے لیے ایک بہت پیار محبت بھرا ہوا ہے. اسی وجہ سے چائنیز گورنمنٹ نے ابھی جو سی پیک کا روٹ انہوں نے سٹارٹ کیا، یہ ایک بزنس ٹائکون کی طرح سے اس کو سٹارٹ کیا. ایشیا میں اس سے پہلے اتنا بڑا، اتنا زبردست روٹ جو ہے ایک دو ملکوں کے بیچ میں ایک اتنا گہرا تعلق کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت عزت کی بات ہے. یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک دوست ملک، ایک ہمسایہ ملک، وہ ہمارے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آنے والا فیوچر، ہمارے بچے، ہم لوگ اس سے استفادہ لیں گے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. کنیکٹیویٹی کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ناٹ اونلی ایشیا، دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی. اور سی پیک جو تھا تو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا نے شروع کیا تو اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا، اور پائلٹ پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سی پیک میں اسپیشلی پاکستان کو منتخب کیا. اور الحمدللہ سی پیک آج کل فیز 2 میں ہے اور بالکل کام بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ فار دا گڈ. اوکے، مائی another question is، کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ جانتے ہیں پرسنلی اپنے علاقے سے، اپنے سٹی سے، جو چائنا میں اس ٹائم میں پڑھ رہے ہیں؟ واٹس دیئر فیڈ بیک؟
about China? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। असल में मेरे जो आप कह दें जानने में तकरीबन नो हाउ एक तरह से आप कह दें कि 10 से 20 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। मतलब 10 से 20 इस तरह से कि जो स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के अलावा वहाँ पे जाके उन्होंने मैरिज की, वहाँ के एक तरह से सिटीज़न बन के उन्होंने वहाँ पे शादियाँ की, उनकी माशाल्लाह एक अज़वाजी ज़िंदगी जो है उन्होंने स्टार्ट की, बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं। दूसरा, उनकी वजह से हमारे जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक सोच उनके सामने आई कि वो भी अपने आप को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान से जाने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आप तालीम हासिल करें, आप वहाँ के कल्चर को सीखें, आप वहाँ के लोगों के साथ उनके जो फीलिंग्स हैं उनको कैच करें कि उन लोगों की सोच क्या है। हमारे अक्सर मेरा अपना एक ज़ाती एक मेरा एक दोस्त था, वो चाइना जा रहा था, तकरीबन 2012 की बात है, 11 है कि 12, मेरा क्लास फेलो था। तो वो जाने से पहले मुझसे मिलने आया, मुझसे वो मिला। उसके दिल में एक सवाल था कि मैं चाइना जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैलाए होते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो जाने से पहले दूसरे बंदे को इतनी नेगेटिविटी दे देते हैं कि वो बंदा जो है वो दिल ही दिल में अंदर से वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। हमें एक्सप्लोर होना है। अगर हमने एक्सप्लोर होना है, हमने जाके कल्चर को देखना है, एक जगह पे जाके उन लोगों के साथ हमने रहना है, उन लोगों के बीच में हमने अपने आप को जो है अपने कल्चर को उधर फैलाना है। उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप उठाएं कि आप वहाँ पे जाएं। मैंने भी उससे यही कहा कि आप अभी तक गए नहीं, आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एंड माशाल्लाह तकरीबन 8-9 साल हो गए, वो बहुत खुश है। इवन ये कि वो जब वापस चाइना से आया तो उसने सबसे पहले मुझसे मिला, मुझे उसने यही कहा कि यार मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुमसे मिल के गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो प्यार मोहब्बत एक पाकिस्तानी को दी, एक पश्तून को दी, एक ऐसे बंदे को कि जिसका बैकग्राउंड में कोई चाइना में नहीं था, ना उसका बाप दादा कोई नहीं, वो उसका पहला स्टेप था कि वो चाइना गया। वो अभी भी वहाँ से बिजनेस भी कर रहा है और वहाँ पे आता जाता है। और उसके अलावा ये जो कोरोना का जो हालात थे, इवन उसमें भी उसने जाके अपने बिजनेस को फरोग देने के लिए वो गया आया। तो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो चाइना में सेटल हैं, जो चाइना में बिजनेसेस कर रहे हैं। इवन वहाँ पे स्टडीज़ के अलावा जो है उन्होंने वहाँ पे शादियाँ भी की हुई हैं, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे से गुजार रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शादी के बाद उनकी जो लाइफ है सेम एज इट इज़ वैसे ही है जो हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा शादी करता है, वो रिश्ते होते हैं, सेम उसी तरह वो लोग भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं और उनके लोगों से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना एक आम हमारी फैमिलीज में जिस तरह मैरिजेस होती हैं और वो लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक खानदान की तरह, एक रिश्तों की तरह, उन रिश्तों को निभाते भी हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। गुड माशाल्लाह, दैट्स रियली अमेजिंग। आपने एक बहुत प्यारी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। एक दूसरा क्वेश्चन आजकल सोशल मीडिया पे भी चलता है कि भाई चाइना आ गया है पाकिस्तान और सीपैक के थ्रू वो पाकिस्तान को ट्रैप करना चाहता है। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, रूमर्स जो है बहुत सी हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ पे अगर किसी बंदे की इमेज खराब करनी हो तो उस बंदे के बारे में एक बंदा दूसरे बंदे को उल्टी बातें करेगा तो लोग उसको डायरेक्ट जज करना शुरू कर देते हैं। वो जाके उससे पर्सनली मिलते नहीं है, उससे जाके देखते नहीं है और डायरेक्ट अपने माइंड से ही क्यों सुनी सुनाई बातों पे अमल होता है। ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, हम 19वीं सदी में नहीं, हम 2022 में रह रहे हैं। ये 2022 स्टार्ट हो गया है, दुनिया आपके एक टच पे है। आप अगर किसी चीज़ के बारे में मतलब किसी से सुन लें, थोड़ा उसको जाके आप थोड़ा सर्च करें, उसके बाद आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोच समझ के बाद उस चीज़ पे आए कि जी हाँ ये बात जो मैंने सुनी है ये सच है या गलत है। तो मेरे अपने मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं कभी भी किसी बंदे की किसी बात को डायरेक्ट यस या डायरेक्ट उसके ऊपर जो है एक जजमेंटल आंसर नहीं दूंगा कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सच कह रहा है। जब तक मैं उसको ऑब्जर्व ना करूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ना हो, तब तक मैं उस दूसरे बंदे की बात पे टोटली अमल नहीं करता।
गुड, इट्स अ वेरी गुड सजेशन कि जब भी इंसान इधर उधर से कोई बात सुने तो उसके ऊपर तहकीक करे, रिसर्च करे और उसके बाद दे आर अलाउड टू हैव देयर स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, दूसरा ये आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि गवादर में आजकल हालात, आजकल तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं, मतलब लास्ट एक माह पहले हालात ज़रा ख़राब थे, लोग आए जमा हुए और उन्होंने गवादर और सीपैक के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की। सो व्हाट डू यू थिंक, गवादर के लोगों को किस तरह सीपैक के साथ कोऑपरेट करना चाहिए? देखें, ऐसा है कि हमारे हर जगह पे अच्छा बुरा होता है, लोगों में भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत माइनर सोच रखते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये चीन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इन हो रहा है, उसने अपने एक तरह से पंजे गाड़ दिए हैं। मैं आपको एक लाइटली सी और एक शॉर्ट बात बताऊं, हमारे यहाँ पे जो इलाके हैं, जो लोग हैं, तो उनमें कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ही समझदार या अक्लमंद जानते हैं। वो उस समझदारी और अक्लमंदी की वजह से बाकी लोगों का नुकसान कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर गवादर में ये सीपैक का रूट जो है गवादर की तरफ से जा रहा है और गवादर के लोगों को एक तरह से तरक्की पजीर शहरों की तरह एक शहर बनने जा रहा है, एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां से पाकिस्तान के क्या कि बाहर के लोग भी चाह रहे हैं कि हम वहां पे आए, वहां पे सोसाइटीज बने, वहां पे हम शिफ्ट हों। देखिए, जब किसी जगह को आबाद होता है, वहां पे लोग आते हैं, तो वहां के अपने लोग इतने नहीं होते जितने बाहर से लोग आके उसको आबाद करते हैं। और जो बाहर से लोग आए होते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से वो इलाका तरक्की करेगा। आपको नॉर्मल सी मैं मिसाल दूं तो एक जगह पे मिसाल देता हूं कि एक जगह पे 30% घर बने हो, वहां पे हमारे मुल्क में ये असूल है कि वहां पे गैस जो है लगती है। इसी तरह गवादर एक तरह से एक ऐसा इलाका था जहां पे हमें खुद पता नहीं था कि गवादर भी ऐसी जगह है जहां को विजिट करना चाहिए। नियर हाउस के इधर उधर जितने शहर, जितने लोग हैं जो गए भी हैं, तो वो उनके माइंड में जो इमेज थी, अब वो इमेज चेंज हो गई है, और वो चेंज आया ही सीपैक की वजह से है। तो मेरा ये अपना जाती राय है कि आप लोग उनको सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मुल्क खड़ा होगा, और जब मुल्क खड़ा होगा तो मुल्क की मईशत की खड़े होने की वजह से हमारे मुल्क को हर जितने ममालिक हैं उनमें इस ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और ये चेंज ओनली पॉसिबल है एजुकेशन की वजह से। तो अगर मज़ीद पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना जाएं, और स्पेशली गवादर से वो स्टूडेंट्स चाइना जाएं और वहाँ पे पढ़ें और फिर वहाँ पाकिस्तान लौट जाएं, सो डू यू थिंक दे कैन चेंज दिस परसेप्शन? यस, ऑफ कोर्स। आपको पता है कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, और तालीम के लिहाज से पहले जो हम बचपन में देखते थे कि किसी ने स्टडीज़ के लिए कोई कराची जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, आपको मौका मिल रहा है, और इस मौके से आप फ़ायदा उठाएं कि आप चीन, मतलब चाइना एक छोटा मुल्क नहीं है, वो बहुत बड़ा मुल्क है। और चाइना में इवन ये कि गवादर के लोग जो हैं उनके बच्चों को आला तालीम, उनके बच्चों को एक दुनिया में, एक एशिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है उधर जाके उसको एक्सप्लोर करना, सिर्फ स्टडीज़ नहीं होती, आपका माइंड खुल जाता है। हमारे यहाँ पे यही होता है कि किसी बंदे को आप एक ही जगह पे रखें, उस एक जगह के बाद जो है उस बंदे को आप कहें कि यार आओ अब मैं तुम्हें ज़रा, मैं इवन अपने पेशावर की मिसाल दूंगा। हमारे यहाँ पे किसी को आप कहें मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो वो आपको कहता है यार मुझे भी ले चलो। तो ये चीज़ है ही इसी वजह से कि वो लोग इस इलाके में रहे और यहीं की सोच रखते हैं। जब आप जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, और फिर शहर की बजाय एक मुल्क से दूसरे मुल्क, जब आप दूसरे मुल्क जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया यहाँ तक नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। इवन हमारे इस्लाम में भी है कि आप समंदर की गहराई तक जाओ, आप आसमानों की बुलंदी तक जाओ, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में अल्लाह ताला की क्या क्या शान है, क्या क्या नेमतें। तब आपको पता चलेगा जब आप जाएंगे, जब आप एक दफ़ा एक स्टेप उठाएंगे। तो मेरी ये एक एडवाइस है कि अगर आपको मौका मिल रहा है, आप चाइना से जाके अपनी क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर इन केस अगर मुझे भी मौका मिला होता तो आज मैं भी चाइना से पढ़ कर आया हो। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। उन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान पाकिस्तान वापस आ गए और यहाँ पे अब वो वापस
अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे चाइना की भी जो पॉलिसी के मुताबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कांट रिटर्न एट द मोमेंट। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि पाकिस्तान में रह के वो क्या करें? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जब आप चाइना गए, आपने वहाँ जाके स्टडीज़ की, पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस, उसकी वजह से लोग वापस अपने आप को माइग्रेट करवाए या वापस पाकिस्तान की तरफ आपने जोर किया कि हम अपने मुल्क जाएं। ये डिज़ास्टर्स जो हैं फर्स्ट टाइम नहीं आया, पहले भी दुनिया में कई ममालिक थे जिधर बहुत सारे वो नेचुरल कॉजेज़ आए जिसकी वजह से वबाएँ आई, जिसकी वजह से लोग जो हैं उन्होंने वापस जोर किया कि हम अपने अपने मुल्क चले जाएं। मेरी उन स्टूडेंट्स को ये राय है और मेरी उन स्टूडेंट्स को ये एक फ्रैंकनेस राय है, अगर आप अपने स्टडीज़, अगर आप अपनी तालीम, एक चीज़ जब आप शुरू करें तो उसको एक मकाम तक पहुंचाएं। आप अपने माइंड में जो गोल आपने अचीव करने के लिए रखा था उस गोल को आप अचीव करें। क्यों किसी चीज़ को अधूरा छोड़ देने से वो चीज़ बाद में एज के साथ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं। आपको पता है एक मामूली सा एक स्कूल है तो उस स्कूल में भी एक तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक अगर बच्चा सुबह स्कूल टाइम पे जाता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर लेट हो जाए तो उसको पनिशमेंट मिलती है। उसी तरह से उसमें जो क्लासेस चल रही हैं, कोई क्लास किसी स्टूडेंट के लिए नहीं रुकी जाती। स्टडीज़ जो लोग वहाँ पे हैं वो हासिल कर रहे हैं, उनको अपने आने वाले फ्यूचर में वो फ़ायदा उनका हो रहा है। जो लोग यहाँ पर आ गए और अब यहाँ पर आके वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू भी नहीं कर सक रहे, तो मैं उन सब को ये एक एडवाइस दूंगा कि ये जो टाइम है, टाइम फ्लाइज, टाइम गुजर जाता है और जब वक्त गुजर जाता है तो वो नुकसान जो है बाद में इंसान बैठ के सोचता है कि काश उस वक्त मैंने अपना फैसला बदला होता और मैंने अपनी स्टडीज़, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की होती। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप लोग जहाँ तक छोड़ा है, जो टाइम ज़ाया हुआ है, अभी भी आपसे कुछ गया आया नहीं, क्योंकि साल डेढ़ सिर्फ इस चीज़ में गुजरा है। आप वापस अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, अपने मुल्क को एक नाम, एक पैशन, एक मजबूत मुल्क बनाएं, क्योंकि आप ही पाकिस्तान की तरक्की हैं, आपसे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा और आपको देख के ही पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर में जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें भी शऊर पैदा होगा कि हम जाके वहाँ पे स्टडीज़ करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे लोगों का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है कि हम लोग काम पहले करते हैं, सोचते बाद में। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आपने, हमारा दीन भी ये कहता है, पहले तोलो फिर बोलो। आप पहले सोचें, उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपसे रह रही है, जो आपसे ये टाइम जा रहा है, ये टाइम वापस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपकी एज भी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ जो है आपसे दुनिया एक दिन आगे चल रही है। तो अब वो एक दिन नहीं, वो साल और 1.5 साल आगे चली गई है। आप लोग उधर के उधर ही रुके हुए हैं। तो अपने आप को रोकने की बजाय आप अपने आप को कंटिन्यू करें और अपने उस गोल को अचीव करें, जो गोल आपने सोच के रखा था, जो स्टार्ट आपने लिया था, उस स्टार्ट को एक एंड तक पहुंचाएं, जिससे हमारे मुल्क और आप और हम सब के फ्यूचर को एक फायदा मिले। गुड, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी। जो स्टूडेंट पाकिस्तान में है अभी, वो आजकल एक स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, डू यू थिंक इनके स्ट्राइक की वजह से जो स्टूडेंट्स चाइना में हैं उनको वहाँ पे कोई मसाइल होंगे या नहीं? दूसरा, यही स्टूडेंट्स आजकल सीपैक के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इन 2 पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं कि जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज उनको अगर ये चीज़ सुनने में पड़े कि हमारे जो बड़े भाई थे या हमसे जो पहले बेंच था या हमारे साथ थे वो वापस चले गए हैं और वो वहाँ जाके स्ट्राइक करें, देखें, आप खो रहे हैं और वो पा रहे हैं, आपसे रह गया है वो हासिल कर रहे हैं। उसको कहते हैं इल्म। इल्म जो है वो एक दरिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपका मतलब कोई खिलाफ बात नहीं, लेकिन आप अपने साथ साथ उनका फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। आपको जो टाइम मिला था, जो आपको मौका मिला था, एक 28,000 पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से जाके चाइना में जाके अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और उन लोगों में से कुछ चंद हजरात जो वापस आ चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, अगर वो स्ट्राइक्स करके, अगर वो सीपैक के अगेंस्ट जाके ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि यार हमें इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो ऑलरेडी नुकसान में हैं। और जो वहाँ पे ऑलरेडी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं
جو اپنی کوالیفیکیشن اسٹل رننگ میں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی کوالیفیکیشن پوری کر رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو وہاں جا کے سیکھا ہے آپ اس چیز کو ادھورا دیکھیں. ہمارے نارمل سی بات ہے، آپ کسی کوشچن کو آدھا کوشچن سن کے آپ آنسر دیں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے غلط آنسر دیں گے. لیکن جب آپ کوشچن پورا سن کے اس کے بعد آنسر دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اینڈنگ لائن میں جو اینڈنگ بات تھی وہ کیا کوشچن میں کی گئی ہے، تو آپ اس کے مطابق آنسر دیں گے. سیم اسی طرح آپ لوگوں نے آدھی کوالیفیکیشن کی ہے، آپ واپس آ گئے، لیکن آپ کو کیا پتا آپ کے آنے کے بعد وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اور بھی زیادہ پڑھا ہے، انہوں نے اور بھی زیادہ سیکھا ہے، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اپنا ایک طرح سے ایک تعلق بنا لیا ہے، اس ملک کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ. آپ بھی کوشش کریں اپنے ملک کا نام بدنام کرنے کے بجائے، اپنے ملک کو لوگوں کی نظر میں گرانے کے بجائے اپنے ملک کا ایک سپاہی بن کے، اپنے ملک کا ایک اسٹوڈنٹ بن کے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا قلم ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی قلم اور اپنی طاقت کو بھول کے وہ روڈوں پہ آ کے اسٹرائکس کر رہا ہو، وہ آ کے ایک ملک کی ترقی کی طرف جانے والے ایک راستے کو، ایک سپیک کو اٹھا کے ایک ایشو بنا کے چائنا کے خلاف، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف اگر وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ان میں اور ان گوادر کے جو چند وہ بالائی علاقوں کے جو وہ لوگ جو پڑھائی نہیں کر سکے، ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ پاکستان میں آ کے یہاں کے جو پریس کلبز ہیں، آپ یہاں پہ آ کے اپنے ملک کی عزت بنائیں، اپنے ملک کی شان بنائیں. اور یہ تب ہوگا جب آپ لوگ بھی جا کے اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کریں گے. جب آپ کچھ اچیو کر کے آئیں گے تو اچیومنٹ صرف آپ کی نہیں، وہ اچیومنٹ میری بھی ہوگی، وہ اچیومنٹ ہر پاکستانی کی ہوگی. اور انشاءاللہ میرا اپنا ایک ہی گول ہے کہ ہمارے آنے والے فیوچر میں ہمارے بچوں کو ایسے ٹیچرز ملیں، ہمارے بچوں کو ایسے انجینئرز ملیں، ہمارے بچوں کو ایسے ڈاکٹرز ملیں، ایسے بزنس مینز ملیں جو وہاں سے اسٹڈیز کر کے یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے ابھی بھی وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کا ایک نام بنانے کے لیے وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. Thank you, Mohammad Saif Khan, for your time. Inshallah, we'll see you again in the next episode of Pak China Window. Thank you. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.